हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब? मेरी यस सर। आ रही है। चलो, अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अब लगता है हो गया। एनी केस तो ओके। और तो कोई नहीं है, इसको जरा बंद करते हैं। अरे इसको बंद कहाँ पे करना है? ओके, सो लेट अस इसको, अच्छा हाँ, लेट मी स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तभी ठीक हो जाएगा ये। ओके, हाँ तो मुझे पहले ये पूछना था कुछ रिगार्डिंग, वैसे कल हमने किया था, चलो वो बाद में पूछता हूँ, पहले जरा शुरू करते हैं क्योंकि देर हो गई पहले से ही। तो लास्ट टाइम हमने किया था yesterday, it was about surfaces of revolution, the general surface of revolution, उसकी इक्वेशन क्या होगी। सो हमने देखा था, we deduced that what we call general surface of revolution, general surface of revolution होती है, if I take a curve and rotate it, take any curve and I rotate it around some axes, I will get a surface of this type, no? एक मतलब complicated cylinder type. For example, if I, जैसे मैंने last time कहा था, अगर मैं खाली straight line को rotate करूँगा in this direction, I will get a surface that is a cylinder. In case you have done that, इसी तरह से अगर semicircle को करेंगे, so I will get a sphere. So उसकी जो general equation हमने finally after using this information जो derive की थी, वो थी R is equal to R at UV, वो था अपना U cos V, U sin V and F of U, where F of U जो है, where Z is equal to F of U is the curve, the generating curve, जिसको हमने घुमा के जो ये surface of revolution बनाया, तो that's our what you call surface of revolution. FU is the generating curve. So leaving that aside, और इसकी सबसे अच्छी example जो थी, जैसे कि मैंने कहा था, that was, जैसे अगर मैं sphere लूं, sphere के लिए you write it like this, so it is cos U, cos V, cos U, sin V, and of course I have sin of U. So of course अगर ये तो हुआ for radius 1, तो अगर radius को A कर दें, the surface of radius A and center at the origin would have this parametric equation. तो इसकी जो basically क्या बोलते हैं, इसकी जो curve of generating curve जो है, that is basically x equal to cos U, z is equal to sin of U. I should write A here. So this would be the parametric equation of the curve which we had actually put it inside xz plane. तो ऐसे हमने बनाया था ये setup, just to get a sense of it, how it is done. उसके बाद इसी तरह से एक और surface है जो सबसे simple है, that is the cone. It's also a surface of revolution. If you take cone, उसकी जो equation होगी, it's also a surface of revolution. हमने शायद लिखा था एक बार, R is equal to R H U. V होगा U cos V, U sin V, and then I should have, okay, it is U. क्या मैंने कुछ और लिखा हो, बट दिस इज द, मतलब अगर हम इसको भी, ये भी उसकी एक पैरामीटराइजेशन होगी। ऑफ कोर्स इसकी जो क्या बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन है, जो जनरेटिंग कर्व होगी, वो भी x इज इक्वल टू u, z इज इक्वल टू u, तो यहाँ z स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है,
So this is the cone. एक और, this is our sphere, and there are many surfaces of revolution. And of course इनका curvature, जैसा कि मैंने कहा था, इसका जो principal curvature के लिए जो formula है for any surface of revolution, वो हम मतलब निकालने की कोशिश करेंगे. यानी we want to find its k sub a and k sub b, and via that, as I said, कि Gaussian curvature जो कि main चीज है, Gaussian curvature जो है, that is equal to k sub a into k sub b, and which is equal to h square by t square, where h square is equal to eg minus f square and t square is equal to ln minus m square. So अगर हमें first and second order fundamental magnitudes पता है, तो we can find the Gaussian curvature. Now let's move ahead and find the curvature of the surface of revolution. Okay, so what we do, इसके लिए हमारा एक ही है, क्या बोलते हैं ना, औजार, वो है differentiation. तो so let me write principal curvatures, जैसा कि तुम्हारे नोट्स में होगा उस तरह से, principal curvatures on the surface of revolution. Surface of revolution. First I write the equation, as you know. तो equation जो इसकी है वो है of course u cos v, u sin v, f of u. This is our general surface of revolution. मतलब any curve जिसकी equation is given by z is equal to f of u, वो surface of revolution होगा. So then I just partially differentiate it with respect to u. What do I get? If I partially differentiate with respect to u, it would be just cos v, then sin v, and of course f dash of u. And I make a certain, I write it like this, just to, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल अब है f में, तो इसको मैं f1 करूंगा. हाँ, f1 का मतलब सिंपली है df by d, ताकि मतलब बार बार मुझे at u ना लिखना पड़े, मतलब just for convenience. And of course r sub v किसके बराबर होगा? r sub v होगा, just differentiate with respect to v partially, so it would be minus u sin of v, u cos of v, and of course this only depends upon u, so it does not depend upon v, so this should be 0. And similarly I can find r sub u. r sub u किसके बराबर होगा? यहाँ v है, so ये 0 होगा, and here but it would be double derivative, जिसको मैं लिखूंगा f11 second derivative. By that I mean of course f double dash at u. इसी तरह से r sub u v अगर मैं निकालना चाहूँ, या r sub v u, बात एक ही है, दोनों बराबर होंगे, तो r sub u v होगा of course minus sin of v minus sin of v, of course then I would have 0. Okay, इसी तरह से ये सारी एंटिटीज इवैल्यूएट करके मैं EFG LMN निकालूंगा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स. और मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम छोड़ना चाहूंगा ये इवैल्यूएट करने का कि E मैं डायरेक्टली अब लिखूंगा व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ E, एंड रिमेंबर व्हाट इज E. अब क्योंकि मैं पिछले पेज पे बार बार नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि E का मतलब है RU डॉट RU. तुम्हें डॉट प्रोडक्ट उनका निकालना है बेसिकली, और जब तुम उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे यू विल गेट सिंपली 1 प्लस f1 स्क्वायर. f तुम्हें 0 मिलेगा, f का मतलब है यू जस्ट हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ r sub u r sub v. इसी तरह से g तुम्हें मिलेगा सिंपली u स्क्वायर, l जो मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें u f11 डिवाइडेड बाय h, एंड ऑफ कोर्स m 0 होगा और n जो होगा वो होगा u स्क्वायर f1 डिवाइड बाय h. अब मुझे पता नहीं इसमें पिछले पेज पे कैसे जाते हैं, बट यू नो व्हाट, यू नो दिस, ये जो f है इट इज दिस एंड g है, जस्ट हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट. जो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले ना,
वो। इसी तरह से L इज नथिंग बट N डॉट RUU, M है N डॉट RUV, डॉट प्रोडक्ट, आई थिंक यू कैन डू डॉट प्रोडक्ट, राइट? N is N डॉट RVV, कोई बोलो, कर सकते हो ना? और Yes, N sir. कैन यू डू इट योरसेल्फ, दिस क्रॉस प्रोडक्ट एंड ना इवैल्यूएट करना ये नंबर। Yes, sir. वेरी बहुत इजी है, कुछ ऐसा करना नहीं है, जस्ट डॉट प्रोडक्ट करो। सो दीज आर माय फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। और बाय द वे इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि हर सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन पे जो मैंने कल कहा था F is equal to 0 एंड M is equal to 0, उसका मतलब ये जो है इसकी पैरामीट्रिक कर्व्स दे आर आल्सो लाइंस ऑफ कर्वेचर। पैरामीट्रिक कर्व्स are also lines of curvature. और जैसा कि मैंने कहा था, for a simple thing as any surface of revolution अगर तुम लोगे, चलो if I take the sphere, right, इसकी जो ये curves है ना, एक तो है ये what we call meridians, यानी ये semicircles, and then of course the parallels. तो ये जो set of equations है longitudes and latitudes, they would be its parametric curves and also lines of curvature. यानी वो कर्व जिनके लिए u कांस्टेंट है या v कांस्टेंट है, दोनों में से एक फिक्स जब करेंगे, you will either get a parallel means a circle of this type, or you will get a meridian for a surface of general revolution. Anyway, that's what we had done. Now we मतलब the equation of the principal curvature जो है उसमें हमें substitute करने होंगे value. The equation of the principal curvatures जो कि हमने इससे पहले की थी, doesn't matter, it's just an equation involving EFG and LMN. So it is h square k sub n square minus En plus GL minus twice Fm times Kn plus T square is equal to 0. K sub n, K sub v, जो में principal curvatures है ना, K sub A and K sub B, these are roots of this quadratic equation. क्योंकि ये quadratic equation है, इसके दो roots होंगे, एक है K sub E and K sub B. Okay, so now if I substitute these values, I substitute the value of E, F, G, L, M, N and other things. So it becomes, जब मैं इसको substitute करूंगा, it becomes U square into 1 plus F1 square into Kn square, substitute करके ना values, minus थोड़ा सा लंबा चौड़ा आएगा ये, minus U square into F1 into 1 plus F1 square. अब एक ही चीज है कि Fm इसमें 0 है, वो हमें फायदा है, प्लस GL आएगा अभी, that is U cube into F11 into Kn plus U cube into F1 into F11 is equal to 0. ये मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने EFG के जो ये वैल्यूज हैं यहाँ पे, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, ओके, और उससे मुझे मिलेगा, so what I get after out of it is this. Okay, just a minute, एक चीज मैं भूल गया, हाँ ये मैंने थोड़ा एक चीज रह गई, U square, okay, what do I have, मैंने शायद हाँ यहाँ पे मैं भूल गया, it is h square, बस अब ठीक है, h square यहाँ पे है, बाकी सब ठीक है, ये मतलब सब्स्टिट्यूशन है, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं उतना फायदा। ओके, इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो U स्क्वायर है, U स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है हर एक टर्म में, U स्क्वायर इधर है, इधर है, इधर है और इधर भी है, तो U स्क्वायर कॉमन निकाल के उससे दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे, राइट साइड इज 0, सो U स्क्वायर हट जाएगा, तो हमें मिलेगा ऑफ कोर्स, और हमारे पास क्या है, ओके जस्ट अ मिनट, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, h स्क्वायर U स्क्वायर, फाइन 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 फाइन, तो यू विल गेट दिस थिंग, पहले तो मैं h स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और U स्क्वायर को खत्म करूंगा, h स्क्वायर का वैल्यू है 1 प्लस F1 स्क्वायर, सो बेसिकली हमें मिलेगा U स्क्वायर खत्म, सो इट वुड बी F प्लस
f1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, u एक बचेगा, हाँ u स्क्वायर था, u एक बच गया, इंटू के एन स्क्वायर माइनस ऑफ कोर्स आई हैव, यहाँ पे रहेगा अपना क्या रहेगा, हाँ यहाँ पर h था, सॉरी यहाँ पर h था, हाँ ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट पेज होना चाहिए, वरना यहाँ नीचे है ना, इसमें जगह नहीं है। लेट मी राइट इट नाउ अगेन, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास ये है इक्वेशन, h स्क्वायर u स्क्वायर इंटू 1 प्लस f1 स्क्वायर इंटू के एन स्क्वायर माइनस h इंटू u स्क्वायर f1 इंटू 1 प्लस f1 स्क्वायर प्लस u क्यूब इंटू f11 all multiplied by kn plus u cube into f1 into f11, this is equal to 0. चलो इसके बाद मैंने h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, और h का वैल्यू जो है वो है, लेट मी राइट इट एज h स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 1 प्लस f1 स्क्वायर, तो यहाँ हमने इसको डाल दिया, तो h को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो क्या मिलेगा हमें, यू विल गेट u4 इंटू 1, चलो आराम से करते हैं, मैंने थोड़ा एक दो स्टेप कम करने की कोशिश की, माइनस here it should be u into root of 1 plus f1 square whole multiplied by u square into f1 into 1 plus f1 square plus u cube into f11 multiplied by kn plus u cube into f1 into f11 is equal to 0. और डिवाइडिंग मुझे लगता है u cube अब बाहर आ जाएगा दोनों साइड से, तो you will get u into 1 plus f1 square into k sub n square minus, यहाँ से हमने u cube निकाला तो खत्म हो गया ये, it would be 1 plus f1 square into, यहाँ से u cube बाहर निकला था तो f1 into 1 plus f1 square, then I have plus, लेकिन यहाँ एक u एक्स्ट्रा है क्योंकि 4 है, so it would be u f11 into kn plus f1 into f11. तो हम अब कहीं तक पहुंचे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, okay, now if I solve for kn, now I have to solve for kn to find the principal curvature. So if I solve for, जैसे quadratic equation को solve करते हैं, right, वो क्या होता है, minus b, so it would be root of 1 plus f1 square, थोड़ा सा calculation है, into f1 into 1 plus f1 square, वो लंबा है, plus u f11, right, then I have plus minus square root of b square minus 4ac, so b square minus 4ac होगा 1 plus f1 square, जो कि है मतलब ये है ना अपना b, ये सारे का सारा b है, ये अपना a है और ये अपना c है, so पहले b स्क्वायर लेते हैं, so it would be f1 into 1 plus f1 का स्क्वायर plus u f11, this thing का whole square minus 4ac, that is minus 4 into u into 1 plus f1 square into f1 f11 whole divided by, इस सारे को डिवाइड करना है हमारे twice a से, that is twice u into 1 plus f1 square. तो ये सॉल्व, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और तुम्हारे नोट्स में दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट जो जाऊंगा ना, इसको थोड़ा अंदर सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ओके, मतलब मैं सीधा इसको सिंप्लीफाई करके जो मिलेगा, दैट वुड बी u f11 plus f1 into 1 plus f1 square plus minus, क्योंकि अंदर वाला सॉल्व हो जाएगा, इट वुड बी u f11 plus f1 into 1 plus, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस माइनस है क्योंकि दो रूट्स हैं, f1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि नीचे वाली टर्म में भी कुछ कैंसिल हो जाएगी, ट्वाइस u into 1 plus f1 square whole raised power 3/2. ओके, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है बट उतना भी नहीं है, तुम्हारे नोट्स में क्लियरली है, बट यू कैन ऑल्सो, अगर मैं ना भी करूं तो तुम ये तो इतना तो खुद कर ही सकते हो,
ठीक है ना? So if KA and KB, if K sub A and K sub B are principal curvatures, तो K होगा, एक में हमें प्लस लेना है, दूसरे में हमें माइनस लेना है, और जब हम प्लस लेंगे तो वहां स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, एंड यू विल गेट F11 divided by 1 plus F1 square whole raised to power 3 by 2, and KB is F1 into U into 1 plus F1 square whole raised to power 1 by 2. Now these are the principal curvatures जो हमें evaluate करना है. यानी इसमें अगर हम देखें what is involved, it is derivatives of f, है ना? F1 का मतलब है of course df by du, and F11 का मतलब है d2f by du2. मतलब द जनरेटिंग कर्व ही हमें सारा कुछ बता रही है, ऑब्वियसली, क्योंकि जनरेटिंग कर्व से ही तो हमें मिलते हैं मतलब सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन. एंड रेडिया ऑफ कर्वेचर जो है, रेडिया कर्वेचर इनका रेसिप्रोकल होता है. रो ए वुड बी, इसको उल्टा कर दो, 1 प्लस मतलब इट वुड बी 1 बाई के ए, तुम खुद ही कर सकते हो, एंड रो बी होगा 1 बाई के बी, उसको उल्टा करके. ठीक है? So and the Gaussian curvature जो होगा, what would be Gaussian curvature? इनका प्रोडक्ट. Gaussian curvature जो कि important है of a surface of revolution होगा, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, K is equal to K sub A into K sub B. What would be that? मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा F1. चलो कोई हो रहा है मुजफ्फर. ओके, मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा? It would be F11, and in the denominator it would be U into 1 plus F1 square whole raised to power, of course, square, क्योंकि 1 by 2 plus 3 by 2. So this is the Gaussian curvature, and of course then there is what we call the first curvature. First curvature होगा, वैसे वो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रूट से C by A, अगर ना इक्वेशन में हम वापस जाएं. So first curvature is K sub A plus K sub B, just add them. ठीक है? और अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा U F11 plus F1 into 1 plus F1 square whole divided by, you would have U into 1 plus F1 square, of course, whole raised to power 3 by 2. So this is our first curvature, the Gaussian curvature, the principal curvatures of what we call surface of revolution. और by the way, जैसे स्फीयर है, स्फीयर का गाउसियन कर्वेचर जो होगा, मैं नेक्स्ट पेज निकालता हूं. स्फीयर की इक्वेशन देखे बगैर भी हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्फीयर की एक प्रॉपर्टी क्या है, कि जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, हर कोई सेक्शन जो है वो प्रिंसिपल सेक्शन है. यानी अगर हम कोई भी मतलब कर्व लें जो ना प्रिंसिपल सेक्शन, तो यहाँ पे ये जो ग्रेड सर्कल्स हैं, एक सर्कल, तो ये इसका एक प्रिंसिपल किसी भी पॉइंट पे, ये दो इसके प्रिंसिपल सेक्शन है, ये भी इसका प्रिंसिपल सेक्शन है, ये भी इसका प्रिंसिपल सेक्शन है. तो इसके जो प्रिंसिपल कर्वेचर्स हैं वो होंगे कर्वेचर्स ऑफ दिस ग्रेड सर्कल. तो अगर स्फीयर की रेडियस जो है, अगर मान लो a है, राइट, देन अगर स्फीयर की रेडियस a है, देन इसकी जो प्रिंसिपल सेक्शंस की जो कर्वेचर होगा वो होगा 1 by a, और KBP होगा 1 by a, which means that जो गाउसियन कर्वेचर होगा, या सिंपली जिसको अब हम कर्वेचर कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट कर्वेचर को हमें उतना नहीं करना, K is equal to K sub A into K sub B is equal to 1 by A square. What does that mean? उसका मतलब ये जो गाउसियन कर्वेचर है ऑफ ए स्फीयर हर जगह कांस्टेंट है. पहली बात, ये जरूरी नहीं है कि जैसे अगर मैं एक आर्बिट्ररी सरफेस लूं, हर जगह इसका गाउसियन कर्वेचर सेम हो, ये जरूरी नहीं है. स्फीयर के लिए इट्स अ कांस्टेंट, राइट, एंड इट्स पॉजिटिव. ये इंपॉर्टेंट है, स्फीयर का कर्वेचर हर पॉइंट पे पॉजिटिव है. और
ऑफ कोर्स प्लेन का जो है, इससे हमें 3 डिफरेंट ज्योमेट्रीज मिलती है। जो ज्योमेट्री हम स्फीयर पे करेंगे, जो हम प्लेन पे करेंगे, इसका जो गॉसियन कर्वेचर है हर पॉइंट पे वो 0 है। नेक्स्ट वी सी देयर इज पॉसिबल surface of revolution जिसका हर पॉइंट पे कर्वेचर गॉसियन कर्वेचर नेगेटिव। तो पहले तो ये बात है, वो सरफेस होनी कैसे चाहिए। आई थिंक एक जो हमारे दिमाग में बात आनी है, इट शुड बी सम काइंड ऑफ अ सैडल। सैडल मींस कि अगर एक प्रिंसिपल कर्वेचर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाए। तो हम उल्टा करेंगे, हम मान लेंगे कि एक सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है जिसका प्रिंसिपल कर्वेचर, जिसका गॉसियन कर्वेचर नेगेटिव है, हम खुद से ही ये मान लेंगे। तो फिर देखेंगे कि उससे जो जनरेटिंग कर्व है, क्या हमें कोई सोल्यूशन मिलता है, क्या हमें कोई जनरेटिंग कर्व ऐसे मिलती है जो उस ऐसी सरफेस को जन्म दे जिसका जो जो कर्वेचर है वो हर जगह कांस्टेंट है और नेगेटिव, यानी गॉसियन कर्वेचर। सो दैट्स इन योर नोट्स। तो मैं उसी को आता हूं कि सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन of constant negative curvature. Okay, so I am here. So हमें पता है हमें क्या करना है, हमें शुरुआत करनी है गॉसियन कर्वेचर से। So K जो कि आपने अभी निकाला है for a surface of revolution is F1 into F11 divided by U into 1 plus F1 square whole square. तो हम मान के चलते हैं, suppose this is minus 1 by C square. C. अब चूंकि C square जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब k हमेशा नेगेटिव होगा। अब 1 बाई सी स्क्वायर हमने, इसलिए हम सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, बट दैट डजंट मैटर। सो इंपॉर्टेंट ये है कि k इन दिस केस हमने पुट किया है इक्वल टू ए नेगेटिव नंबर। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ट्वाइस f11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस f1 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस u बाई सी स्क्वायर। तो ये हमने इसकी इसलिए किया, वी वांट टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। f1 है क्या? इट इज df बाई du। f2 है क्या? इट इज द सेकंड डेरिवेटिव। तो अब हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहे हैं, ताकि मतलब फॉर कन्वीनियंस से। सो इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, you realize that 1 plus f1 square, अगर मैं इसको d by du से डिफरेंशिएट करूं, you will get twice f1 into f11, यानी जो न्यूमरेटर है वो ये अंदर जो बैठा है इसका डेरिवेटिव है ना, ये जो अंदर एंटिटी है। इसका मतलब ये है कि आई शुड गेट, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू u, integrating both sides with respect to u, I would get minus 1 by 1 plus f1 square का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर तो नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर इंटीग्रेशन में खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस 2u डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर du प्लस सम कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, and I choose my, chunki c can be any constant, just to make my things further simpler, I choose c to be equal to 0। constant को मैं 0 करता हूँ, कोई भी ले सकता था मैंने 0 लिया, कोई भी constant हो सकता था, और u कैंसिल हो जाएगा। so that means I will get 1 by 1 plus f1 square is equal to u square by c square। इसको इंटीग्रेट करो 2u को तो u स्क्वायर आ जाएगा। तो लेकिन अभी भी ये हल नहीं हुआ, इट इज अगेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट लेकिन अब इसका ऑर्डर एक कम हो गया है ना, अब इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। सो यू वुड हैव, okay, let me write it as 1 by 1 plus f1 square is equal to now u square by c square। okay, उसका मतलब अगर मैं इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई करने का मतलब मैं इसको लिखूं u स्क्वायर इंटू 1 प्लस f1 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, राइट। इसको यहाँ ले गए,
Then I solve for this, so you would get, let me see. So it means 1 plus f1 square is equal to c square by u square, right? Which means f1 is basically plus minus whatever square root of c square by u square minus 1, which is nothing but, what is this? This is actually dz by du. And remember that है ना, वो z coordinate था ना जो यहाँ पे तीसरा coordinate था f of u. And this is actually df by du, which is dz by du. ठीक है? Now what do? You integrate it once more, right? और अगर तुम अपने नोट्स देखोगे, मैं चाहूंगा तुम खुद से करो. You just put u equal to, let me write it, c sin theta, so that du is equal to, मतलब पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, जैसे कि हम लिखते हैं कि पहले इसको ऐसे लिखेंगे, dz is equal to integral dz is equal to integral, right, c square by u square minus 1 du. No, that's the way you do it, since I don't know कब से. So इसको अगर ये substitution करेंगे, अगर हम ये substitution करेंगे, so you will basically get du is equal to c cos theta, and after substitution जो हमारा f है या जो हमारा z है, z is equal to हमें मिलेगा c log c by u minus square root of, let me write it, c square minus u square divided by u plus square root of c square minus e square. सब्स्टिट्यूशन के बाद मतलब वापस हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा ना u की वैल्यू, तो तुम्हारे नोट्स पे तो कर दिया ही हुआ है, but this would be the equation. The question is this an equation of a curve that we know? तो एक्चुअली हमें क्लास में तो कोई मौका मिला नहीं इन कर्व्स को ज्यादा खंगालने का, but this is a ट्रैक्ट्रिक्स. ये जो एक कर्व की इक्वेशन है, ये ट्रैक्ट्रिक्स है, मतलब इट इज इंडीड अ कर्व. और अगर मैं इसे इसको प्लॉट करना होगा इन द ZX प्लेन, जो कि मेरा है, जिसमें एक कर्व है, ऐसे मैंने बनाया था पहले. सो इट्स अ कर्व लाइक दिस. इसको हम बोलते हैं, अगर हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे कुछ बन जाएगा ना ये बाजा सा, तो ये है हमारी जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बनेगी, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व जो हमें मिला ना, z इज इक्वल टू log of जो भी था c by u minus square root of c square minus u square by u, and of course plus root of c square minus u square. अब हमें ये मिलती कैसे है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कर्व है ना, ये खुद ये जो मैंने बनाई ना ये प्लेन में, एक जिसको रोटेट करने के बाद, इट इज एन इंटरेस्टिंग कर्व. ट्रैक्ट्रिक्स रोटेट करने से ये जो हाँ, पहले जो ये सरफेस बनी, इसका नाम है स्यूडोस्फीयर. तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा इसमें क्या है. देखो, अगर इसके जो प्रिंसिपल सेक्शंस हैं, जो मेरिडियन होगी, मेरिडियन ऐसे होगी, और इसके जो पैरेलल होंगे ना, दूसरा प्रिंसिपल सेक्शन होगा इस तरह से. यानी जो जो मुड़ने का जो है ना इन प्रिंसिपल सेक्शंस का, दे आर कर्व्ड इन ऑपोजिट वेज. यानी अगर एक का प्रिंसिपल कर्वेचर प्लस हम मान ले, तो दूसरे का नेगेटिव होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ मुड़ी हुई है और वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है. सो इसका कर्वेचर नेगेटिव है, गाउसियन कर्वेचर जो ना ये सरफेस बनी. और जो ट्रैक्ट्रिक्स है ये भी इंटरेस्टिंग है. शुड आई, अच्छा अभी ये खत्म हो रहा है, लेकिन ट्रैक्ट्रिक्स इज गिवन बाय